हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई ग्रेट. लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज मिसलेनियस प्रोविजन. इन दिस we will cover provision relating to the registrar valuer and valuation rule, and provision relating to the removal of the name of the company from the register of the company. ठीक है. गवर्नमेंट कंपनी related provisions, their annual report, nidhi companies, and provision relating to the 447 section number, fraud, dormant company related provisions. So these all the provision we will discuss in this chapter. Now let's start. We will discuss first with the government company and their audit report. Okay, let's start. Yes, let's start. Page number 116. Government company. These provision cover in a section number 394, that is talking about. Firstly, we will discuss what is the definition of the government company. Who will be called the government company? That is the section number 2, clause 45 of the Companies Act 2013. Government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital, either it may be the preference and the equity, is held by the central government. Means किसी भी कंपनी में शेयर्स मोर देन 51% होल्ड करे जा रहे हो, या तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर दोनों भी मिलकर होल्ड कर सकती हैं. एंड इंक्लूड गवर्नमेंट कंपनी वो भी होंगी जिन विच इज द सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी. Okay, if there is a subsidiary which is of the government company, then it will also consider as a government company. Okay, now paid up share capital, constructed a total voting power. ठीक है, this is not as such important. अब आ जाते हैं section 394, that is talking about annual report on the government company. अब annual report जो government company पर कैसे होगी? Annual report of the company where the central government and state government is the member of the government company. ठीक है, मतलब दोनों के केस में बताया गया कि एनुअल रिपोर्ट कैसे बनेगी. इफ देयर इज ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेंबर, इफ देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट इज ओनली द मेंबर, इफ बोथ आर द मेंबर, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. सबसे पहले वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मेंबर ऑफ अ कंपनी मींस central government shall cause an annual report on the working and affair of the company to be prepared within the 3 months of his AGM. मतलब AGM के 3 months के अंदर अंदर annual report ready करी जाएगी, before which comments given by the CAG. You know very well कि audit reports कौन prepare करता है? गवर्नमेंट कंपनी की CAG अपॉइंट होता है CAG उस केस में. ठीक है, ऑफ द इंडिया, and annual report प्लेस करी जाएगी under section 143 of subsection 6. And as soon as after such preparation means within a 30 days, इसको हम लोग within a 3 months we have from the date of the annual general meeting we have to prepare. Who shall prepare the annual report? CAG, that is the comptroller and auditor general shall prepare the audit report, and after the preparations it shall lay down before both the houses of the parliament. If there is a central government is a member of the government company, students, then such audit report shall be presented before both the houses of the parliament together with the copy of the audit reports and comments or supplement to the audit reports. जो भी comments वगैरह prepare करे गए हैं CAG के द्वारा, they will report. Where in addition to the, यहाँ पर तो सिंगल सिर्फ CG की बात हुई है, अब यहाँ पे CG भी मेंबर है, as well as स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो द मेंबर, मीन्स दोनों है. इस केस में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉज द कॉपी ऑफ प्रिपेयर करेगी एंड टू बी लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउसेस, और बोथ हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो, एंड द सप्लीमेंट कमेंट्स वो भी. मतलब इसमें एक एडिशनल चीज इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज क्या? बोथ द हाउसेस में लेट डाउन करो बिफोर द हाउस, और या फिर बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर, दैट इज द एग्जांपल. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. अब एनुअल रिपोर्ट वेयर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर ऑफ अ कंपनी. अब यहाँ पे बात करी गई है, अगर यहाँ पे मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मतलब दे आर द मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो उस केस में क्या होगा?
और यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, मतलब जो सारा होल्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट लेके बैठी है उस पर्टिकुलर कंपनी पे। तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट विच इज द मेंबर ऑफ दैट कंपनी, वेयर ओनली वन स्टेट इज द मेंबर, दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज करेगी एंड प्रिपेयर करेगी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम एंड आफ्टर सच प्रिपेयर लेट डाउन बिफोर द हाउसेज या फिर बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब एज मैंने जैसे पहले ऊपर पढ़ाया था वैसे ही, जहाँ पर सिर्फ मतलब स्टेट गवर्नमेंट है तो उस केस में भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर में ये हमारे एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट होंगे, सीएमएस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर application of the provision to the government companies a liquidation. Suppose that section 394 कहता है कि shall apply to the government company in liquidation, it shall also apply to the other government company। मतलब वही liquidation के provisions गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द निधि कंपनी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू भी, एक डिटेल्ड क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज द कंपलसरी। आजकल आईसीआई इस पे बहुत हाई टाइम दे रही है, मतलब हाई वैल्यू दे रही है, कम से कम 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आर कंपलसरी इज आस्किंग, इट मे बी इन एमसीक्यू, मे बी इन डिस्क्रिप्टिव, and it is a very easy student, this is not a critical, this is very a procedural or limit part you have to keep in your mind। Now first provision given in a section number 406 of the Companies Act provides the power to the central government to modify the act in the applicable to the निधि। ठीक है, निधि क्या है, निधि या फिर कोई म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर कर सकती है निधि, या फिर कोई म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द निधि। सो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, हर साल हमारी हमारी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल गैजेट आता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, तो वहां पर वो डिक्लेयर कर सकती है व्हाट विल बी द निधि डायरेक्ट एक्ट। any of the provision of this is specified shall not apply to any provision through the nidhi या फिर mutual benefit। तो by the official gazette ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी चेंजेस ला सकती है कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा निधि पर या फिर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी पर। ठीक है, नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां से स्टार्ट करते हैं, यही दैट एप्लीकेशन रूल 2। स्टूडेंट्स इसके ना रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एप्लीकेशन रूल नंबर 2 में दी गई है, डेफिनेशन रूल नंबर 3 में दी गई है, अब इसके जो इनकॉर्पोरेशन पार्ट है वो रूल नंबर 4 में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रूल 2 कि निधि कंपनी कौन होती है। एवरी कंपनी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 620A of the Companies Act 1956, every company functioning on line of the nidhi company or mutual benefit society but has either not applied for or has applied for and in writing uh, is awaiting the notifications to be a nidhi or mutual benefit society, every company incorporated as a nidhi pursuant to the provision of section 406 of the act। ठीक है, this is all about if these companies cover they will be called as a nidhi company and every company declared as a nidhi ki yes we are a nidhi and covering under the provision of the section 406, so that will be considered as the nidhi company। okay, now definition ये आप स्टडी कर लेना, नॉट एज सच। एक इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेट ओन फंड। इसको मैं बता देती हूँ, नेट ओन फंड किसको बोलते हैं, नेट ओन फंड एंड निधि, निधि का काम क्या है, मैं ये दो डेफिनेशन बता देती हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बताता हूँ नेट ओन फंड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व as reduced by the accumulated losses and intangible assets appearing in the last audited balance sheet। प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड ही नहीं होते निधि कंपनी को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब नेट ओन फंड कैसे हम लोग फिगर को कैलकुलेट करते हैं, एग्रीगेट करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व में से ये दोनों का हम टोटल करने के बाद फिर हम रिड्यूस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इंटेंजिबल असेट्स, और हम ये फिगर कहाँ से उठाएंगे, जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां से हम ये फिगर उठाएंगे, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द प्रोसीड्स शैल नॉट अलाउड। ये मैंने पहले आपको बात बताई थी। निधि का मतलब क्या है, निधि का मतलब कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि, जिसका ऑब्जेक्टिव है
कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स द इट्स मेंबर से पैसे लेना, रिसीविंग अ डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली for their mutual benefits who comply with the rules made by the central government for the regulation of such class of the company. निधि का काम ये है कि cultivating the thrift या फिर lending the money to its member, accept the deposits and benefits कुछ भी अपने members को देना. So this is the main object of the निधि company. Now let's start with the incorporation part. Rule number 4 में specify करा गया. अब निधि incorporation करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल निधि जो है हमारा शेयर भी पब्लिक कंपनी होगी. इट विल बी कंसिडर एज अ पब्लिक कंपनी स्टूडेंट्स. ठीक है. एंड शेल हैव द मिनिमम इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस. मिनिमम इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए. इट विल बी कंसिडर एज अ पब्लिक कंपनी. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप में ओनली सिर्फ इक्विटी अलाउड है और जो कि 5 लाख रुपीस की है. आफ्टर द कमेंसमेंट नो, अगर मान लो सपोज दैट प्रीवियस हमारे किसी कंपनीज एक्ट 1956 में इधर भी प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड थे, तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सब रिडीम करने पड़ेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल टू द निधि. इफ द प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए हैं बिफोर द कमेंसमेंट देन इट रिडीम हो जाने चाहिए. यही बात मैंने आपको बताई थी अभी. अब नो निधि शेल हैव एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अदर देन, सिर्फ यही इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए. वो मेमोरेंडम में इसके अलावा कोई भी अपना ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकती. ठीक है. बट हाँ लॉकर फैसिलिटी दे सकते हैं वो भी अपने मेंबर्स को. दिस इज नॉट अलाउड टू एनीवन. ठीक है. यही लिखा है. निधि विच हैज बीन अडहेरेड but provide the local facility on a rent to its member और उसकी rental income not more than 20% of its total income से ज्यादा नहीं होनी चाहिए gross income at any point of time during the financial year. Means it should be up to the 20% of the total gross income of the निधि. ठीक है. एंड निधि कंपनी के आगे लास्ट में लिखा होना चाहिए लिमिटेड. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. निधि लिमिटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट. रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर. नेट ओन फंड निकालना सिखाई दिया था. पेड अप इक्विटी शेयर्स एंड फ्री रिजर्व. अब उसमें सब एक्यूमुलेटेड लॉसेस इंटेंजिबल असेट्स को रिड्यूस कर देंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग की मिनिमम रिक्वायरमेंट का. दैट इज गिवन इन रूल 5. सबसे पहले एवरी निधि शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. सपोज दैट टुडे वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द निधि कंपनी. एक साल के अंदर अंदर निधि कंपनी को ये चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी. ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. क्या क्या? कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए निधि के अंदर. नेट ओन फंड जो है 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए. अनएनकम्ब्रेंस टर्म ऑफ डिपॉजिट नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, जो कि रूल नंबर 14 में स्पेसिफाइड. और नेट ओन फंड और डिपॉजिट का रेशियो जो है 1:20 मेंटेन होना चाहिए. मींस नेट ओन फंड अगर 1 है तो डिपॉजिट 20 होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट हमें ए 1 ईयर के अंदर अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा. सपोज दैट within a 90 days from the closure of the first financial year. suppose that आज मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा है. यदि फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2024. तब जो एंड होगा उसके विद इन द 90 डेज के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? वेयर द एप्लीकेबल सेकंड ईयर जब कमेंस होगा निधि जो है शेल फाइल द रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस NDH1 along with the fees. means within the 90 days के अंदर अंदर after the completion of the first financial year of the date of the incorporation, तो ये NDH1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस. और वो सर्टिफाइड होना चाहिए. किसको फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार को, जो कि सर्टिफाइड बाय द प्रैक्टिस में होना चाहिए. या तो कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा लो या सीए से या फिर सीएम कॉस्ट अकाउंटेंट से. ठीक है. अगर निधि इसका कॉम्प्लाई नहीं कर पाती, किसका? इनमें से किसी का भी, ना तो वो 200 मेंबर्स ला पाई टोटल, ना ही नेट ओन फंड मेंटेन कर पाई, ना ही एनकम्बरेंस, ना ही रेशियो मेंटेन कर पाई, तो उस केस में क्या होगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहले मतलब 31 मार्च के बाद विद इन 30 डेज उन्हें ये अप्लाई करना पड़ेगा. किसको? रीजनल डायरेक्टर को एनडीएच फॉर्म में. दैट एक्सटेंशन के लिए उन्हें अपील करनी पड़ेगी कि हमें एक्सटेंशन दे दीजिए, हम ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. तो दे विल सेंड द अब रीजनल डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन अपना ऑर्डर देगी रीजनेबल ग्राउंड के बेसिस पे. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, लेकिन ये एक्सटेंशन अप टू द 1 ईयर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन. मींस
आपको कितने टाइम के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको एप्लीकेशन देनी होगी रीजनल डायरेक्टर को NDH2 में फॉर्म नंबर। ठीक है, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर विद इन 30 डेज अपना ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास कितने टाइम को होगा? 1 ईयर। 1 ईयर कहाँ से काउंट होंगे? 1 ईयर काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। मीन्स, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन किसको? बाय आरडी, आरडी को जो रिसीव हुई है। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? पर्सन अपॉइंट करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में एज अ रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, और अगर फेलियर हो गया या कुछ मतलब लाइक आपने नहीं करा तो उस केस में क्या कॉन्ट्रावेंशन होगा, 406 की आप पेनल्टी के लिए लायबल होंगे। अब आ जाते हैं निधि क्या क्या नहीं कर सकती। उनका ऑब्जेक्ट ही है हेल्प करना, लैंडिंग द लोन्स टू देयर मेंबर्स, ये सब उनका काम है। अब निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती? निधि कंपनी नहीं कर सकती क्या क्या ये काम। निधि कंपनी ना तो कोई चिट फंड कैरी आउट कर सकती, ना ही हायर परचेज का बिजनेस कर सकती, लीजिंग का भी नहीं करती, इंश्योरेंस का भी नहीं कर सकती, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं कर सकती, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर दैट इंस्ट्रूमेंट बाय एनी नेम और इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। ना ही कोई करंट अकाउंट ओपन कर सकती विद इट्स मेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ना ही एक्वायर कर सकती अनदर कंपनी बाय द परचेज और सिक्योरिटी। ठीक है, एंटर कुछ भी नहीं, लेकिन अनलेस इट हैज पास a special resolution in its general meeting and also obtain the prior approval of the RT having the jurisdiction, लेकिन उस केस में कर सकती है। ठीक है, if they wants to acquire another company by purchasing of security, किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं निधि कंपनी, yes they can। firstly they have to pass the special resolution in its general meeting and also obtain the previous approval of the regional director, and then thereafter they can buy the shares of the another company। ठीक है, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती अदर देन द वो भी मेंबर्स के साथ, बिजनेस ऑफ द बोरिंग और लैंडिंग इन इट्स ओन नेम। ठीक है, हाउएवर निधि हु हैज एड्रेस्ड, वही 20% ऊपर बताया था, ये काम कर सकती है। एक्सेप्ट नहीं कर सकती अदर देन इट्स मेंबर, प्लेज नहीं कर सकती सिक्योरिटीज को, प्लेज एनी ऑफ इट्स एसेट्स लॉक्ड बाय इट एज अ सिक्योरिटी, टेक डिपॉजिट और लैंडिंग मनी टू इट्स बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप में भी नहीं आ सकती, ना ही इशू कर सकती सॉलिसिटेड डिपॉजिट। हाउएवर प्राइवेट सर्कुलेशन ऑफ द डिटेल ऑफ द फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमंग द, ये पर उस पे लिखना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट पे, फॉर द प्राइवेट सर्कुलेशन टू द मेंबर्स ओनली shall not be considered to be the advertisement for the soliciting the deposit। अगर मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट हो रहा है, ना ही कोई ब्रोकरेज, ना ही कोई, मतलब कुल मिला के बात ये है, that is there is only the one confusion, that is we cannot do any kind of the business with anyone other than the member। member के लिए restrictions है, we have give only kind of only deposit, lending, savings, they can't do, but lower facility also provide कराई सकती है, it should not be more than the 20% of its gross income। ठीक है, so this is all about the, अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल, ये मैंने आपको बता ही दिया था, पर इसको पढ़ा देती हूँ। स्टूडेंट्स टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इंक्रीज योर स्पीड जितना हो सके। अब हमें बिल्कुल स्पीड में काम करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट, दैट इज द रूल नंबर 7। एवरी निधि शैल इशू द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 10 रुपीज। जो भी इक्विटी शेयर्स मेंबर्स को इशू करे जाएंगे, एवरी, जो निधि कंपनी इक्विटी शेयर्स अपने मेंबर को इशू करेगी उनकी नॉमिनल वैल्यू लेस देन नहीं होनी चाहिए 10 रुपीज ईच से। It should not be less than 10 rupees each। हर शेयर्स की वैल्यू कम से कम, each शेयर्स की कम से कम 10 होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कोई भी सर्विस चार्ज नहीं ले जाएंगे। इशू करते टाइम सिक्योरिटीज के मिनिमम 10 या फिर 100 रुपीज के, या तो ईच की वैल्यू 10 होनी चाहिए मिनिमम, या फिर इक्विवेलेंट टोटल 100 से कम नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट सेविंग अकाउंट होल्डर एंड द रिकरिंग डिपॉजिट होल्डर shall hold at least one equity shares of 10 each। अब आ जाते हैं मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब मेंबरशिप किस किस को मिल सकती है निधि कंपनी की? निधि कंपनी की मेंबरशिप बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं मिलेगी, ना ही किसी ट्रस्ट को मिलेगी।
Every nidhi shall ensure that its membership is not reduced at any time. ये हमने पहले रिक्वायरमेंट में पढ़ लिया था. Minor shall not be admitted as a member. Minor admitted नहीं होगा as a member of the nidhi. However, deposit may be accepted in the name of the minor. Member on the behalf of the minor deposits accept कर सकता है if they are made by the natural or legal guardian recipient who is the member of nidhi. वो member बन सकता है. Otherwise, minor cannot become the member. Net own fund मैंने बता दिया था आपको. Not less than 10 lakh rupees. Acceptance of deposit. निधि जो है हमारा shall not accept any 20, ये मैंने बता दिया as per the last audited financial statements. ये भी टाइम लिमिट है. डिपॉजिट है मैंने बता दिया था. मिनिमम जो है मैक्सिमम 60 रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट के लिए क्या है शैल बी एक्सेप्टेड मिनिमम 6 मंथ के लिए एंड मैक्सिमम 60 मंथ के लिए. और रिकरिंग डिपॉजिट है तो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए एंड मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए. एंड इन केस ऑफ द रिलेटेड टू मॉर्गेज मतलब कोई मॉर्गेज लोन्स है एंड मैक्सिमम जो है हमारा एंड द कॉरस्पॉन्डेंस जो है शैल बी ग्रांटेड बाय द निधि. तो ये सब इंटरेस्ट के बारे में दिया गया है. ये आप पढ़ लेना. दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट. एंड निधि जो है हमारा अब आ जाते हैं लोन. ये भी आप थ्योरेटिकल पार्ट है. ये भी पढ़ लेना. निधि जो है हमारा शैल इन्वेस्ट एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्टेड इन अनकैप्रेज टर्म डिपॉजिट विद द शेड्यूल्ड बैंक अदर देन द कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक. मतलब रीजनल रूरल बैंक नहीं हो सकते, कोऑपरेटिव बैंक नहीं हो सकते, या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ इन इट्स ओन नेम में डिपॉजिट करा सकती है. विच शैल नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकंड प्रीसीडिंग मंथ. ठीक है. अब आ जाते हैं लोन. निधि जो है शैल गिव लोन ओनली टू इट्स मेंबर. लोन गिवन बाय सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट. अब लोन ये नहीं है कि मेंबर कोई भी आएगा और पैसा लेके चला जाएगा. इसके लिए लिमिट है. लिमिट क्या है? 2 लाख रुपीज चाहिए. तो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज लेस देन 2 करोड़. इफ जो डिपॉजिट लिया है मेंबर से अगर वो लेस देन 2 करोड़ है तो हम उसे 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं. 7 लाख कब देंगे? अगर वो लेस देन 20 करोड़ है बट 2 करोड़ से ज्यादा है. ठीक है. अब 12 लाख कब देंगे हम लोग? 12 लाख तब देंगे अगर वो मोर देन 20 है बट लेस देन 50 करोड़ है. और 15 लाख हम कब देंगे? 15 लाख हम तब देंगे जब अगर मोर देन वो 50 करोड़ है तब हम उसको 15 लाख का लोन दे सकते हैं. तो दिस 15 लाख का लोन दे सकते हैं इफ इट इज अ मोर देन 50 करोड़. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट्स. एंड यस निधि जो है हमारा शैल गिव अ लोन टू इट्स मेंबर ओनली अगेंस्ट द फॉलोइंग सिक्योरिटीज गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द रीपेमेंट ऑफ सच लोन शैल नॉट एक्सीड द 1 ईयर. मतलब 1 साल तक के लिए दे सकते हैं अगर गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी रिलेटेड है. इनमेवेबल प्रॉपर्टी के लिए लोन प्रोसीजर्स फिक्स डिपॉजिट के रिसीट के अगेंस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस ये सब चीजें. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है. रूल्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर. डायरेक्टर शैल बी द मेंबर ऑफ द निधि. डायरेक्टर जो है मेंबर होना चाहिए निधि कंपनी का. डायरेक्टर जो है शैल होल्ड द ऑफिस ओनली अप टू द टर्म ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑन द बोर्ड ऑफ निधि. मतलब जो डायरेक्टर होगा वो 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है. ठीक है. Director shall also be eligible for the reappointment, but after the expiry of 2 years of seizing, मतलब there is a cooling period of 2 years where the tenure of director जो है हमारा has already been extended, then it shall be terminates on the expiry of such extended tenure. ठीक है. Person shall not to be appointed as a director shall comply with the requirement and shall not have any disqualification from the appointment. अब आ जाता है dividend. निधि जो है हमारा shall not declare dividend exceeding the 25% or such higher amount as may be approved by या तो जो हायर अमाउंट सपोज दैट आरडी ने स्पेसिफाई कर दी कि आप 30% का डिविडेंड डिक्लेयर करो तो 30% का करना पड़ेगा. अदरवाइज 25% से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती निधि कंपनी और रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर को. अब जब डिक्लेयर करेगी डिविडेंड निधि कंपनी तो क्या करेगी? जितना डिविडेंड डिक्लेयर करा जा रहा है उसके मतलब उतना ही हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे.
एंड कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन द रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, इट शैल कॉम्प्लाई विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आ जाते हैं ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन दैट इज कवर इन रूल 19। अब आ जाते हैं रूल 19 प्रोविजन पे, फिर उसके बाद मिसलेनियस पनिशमेंट फ्रॉड एंड फिर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस, देन आफ्टर दैट खत्म प्रोविजन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। No Nidhi shall appoint or reappoint as an individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive year। अगर इंडिविजुअल ऑडिट फर्म है तो उस केस में क्या है, वो 5 इयर्स तक अपॉइंट हो सकता है। और अगर मतलब पार्टनरशिप फर्म है ऑडिट की, तो उस केस में वो 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years, मतलब 10 ईयर से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता। 2 years का कूलिंग ऑफ पीरियड है। इफ दे वांट टू मेक अ रीअपॉइंटमेंट, those are we have to take a gap of 2 years and thereafter they can appoint the same person। ठीक है, अब ये सारी चीजें इसमें ये लिखी हुई है, ठीक है, पढ़ लेना। ऑडिटर सर्टिफिकेट हर चीज में। अब कॉम्प्लाइंसेस पे आ जाते हैं। एक तो हाफ ईयरली रिटर्न जाएगी। यहाँ पर क्या है, निधि कंपनी की हाफ ईयरली रिटर्न जाती है NDH 3 में। मीन्स विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर duly certified by the company secretary in practice, chartered accountant in practice or cost accountant in practice। means suppose that half year कब खत्म हुआ, सितंबर में, सितंबर के 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा NDH 3, और वो सर्टिफाइड होना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिस में हो, CS CA या फिर CWA। ठीक है, अब आ जाते हैं पेनल्टी नॉन कॉन्ट्रावेंशन। तो ये यहाँ पे गिवन है, ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद करनी है तो कर लेना। अब आ जाते हैं 447 सेक्शन। इसके बाद वी विल कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले पढ़ते हैं। अब हम बोलते हैं कि ये प्रोविजन लगेंगे, उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो 447 की पेनल्टीज लगेंगी। तो यहाँ पर यही दिया गया है, पेनल्टीज स्पेसिफाई करी गई है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं फ्रेशली, फ्रॉड के प्रोविजन को। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड डू योर हार्ड स्टडी विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके।